Good morning, students. So in today's session, we are going to discuss one of the toughest sections included in English grammar, none other than prepositions. I hope you people know the definition and the rules of prepositions, but above all, if you talk about grade 10, 11 and 12, in maximum cases, any examiner or the paper, or the people who are setting the paper, they will definitely ask you about phrasal prepositions. So let's see. These are a few questions in front of you where I have clearly mentioned the options also, and along with the answers. And why these prepositions would be applied, let's see. Question number 1, can anyone read it out for me? She shouted angrily at the disobedient boy. Now look at this. Believe me, we would also be solving few questions where you people would be having no options, nor the answers would be in front of you. I need to know how many of you actually knew this, that the preposition at will be applied. No one is active, no problem. She shouted angrily at the disobedient boy. Remember this, I would be highlighting few rules over here. You will have to memorize them like the formula of mathematics. Excuse me, sir. So why can't we use on instead of at? I was expecting this. Why can't we use on? Believe me, Mr. Achit, we all used to apply on before few years. Look at how rapidly English has changed. You won't believe, there are many such sentences, many such fill in the blanks, etc., etc., where we used to apply some different prepositions. But now, obviously, English being the toughest language, rules keep on changing every second day. She shouted angrily on the disobedient boy. Let me tell you, there is no hard and fast rule, but on won't be applied over here because at is used for temporary things. In case if she must have shouted at someone, that would have been temporary. In the similar manner, we use at for temporary locations also. At the mall, at gym, at school, at college, at the movies, at park, at the parking slot, at home, even at work. So in the similar manner, even the actions that take place temporarily, here also we would be using the preposition at. And now this is one rule, so memorize it. Rule number 2, you must have seen many times such sentences appear in front of you. Like for example, he is very good dash mathematics. Okay. And I request everyone to please keep their, I won't ask you people to turn on your videos, but keep your audios on at least. And in case if you're with your family playing cards and all, then get lost please for a while. Okay. So I want everyone's audios on. Yes. Okay, sir. 1, 2. And please, audio should be permanently on in my Zoom meeting. Else you're free to leave. Okay, sir. Okay. Because I'll upload this video, you can see it later on. Come on. No single noise or sound should come from the background. Remember this, I'll throw you out. जितनी इच्छा से त्योहार मनाया था, उतनी इच्छा से मेरी क्लास करना, सोचे रहना ये बात. आगे चलते हैं. He is very good dash mathematics. चलिए भरिए जरा. क्या? In mathematics. In mathematics. I knew this. In या at या on बोलोगे जरूर. I'm so sorry. यहाँ पर भी you people have committed a mistake. He is very good at mathematics. I know many of the students
specifically of my batch, they have the habit. Japneet is not here. I'm very shocked to see this. Otherwise, she has a habit of noting each and everything down, like whenever I make or whenever I dictate some or the other rules. So what you people can do is that you can note it down. Whenever this word is used, good, always apply. Whenever this word is used, good, always apply preposition at. That's it. You can blindly follow this. Okay, sir. अगर good जैसा है, adjective लगा है, so go for at. You will definitely get such types of questions. आप देखना, एक क्वेश्चन तो ये आपके सामने आया, he is very good at mathematics. Now the second sentence, look at this. किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, या तो ऑडियो म्यूट कर लो बिफोर आए, दैट्स बेटर. आगे चलते हैं. अब एक और ऐसा सेंटेंस आता है, ही इज. देखना, अभी मेरा ही रूल मैंने ही काउंटर कर दिया. सोचिए, अभी देखना कैसे. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला, आई जस्ट मेंशन दिस दैट यूज द प्रेपोजिशन एट. ये वीवो से किसने लॉग इन किया है? ओके. ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स. अब इस सेंटेंस को भरना जो मैं यहां लिख रहा हूं, ही इज वेरी गुड डैश द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. शुरू कर दीजिए भरना प्रेपोजिशंस. ही इज वेरी गुड डैश. In. Excellent, excellent. Achit has a wonderful background. It's immense silence over there. Okay. He is very good dash the field of mathematics. I am very happy to see कि किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर एट यहां पर क्यों लगेगा. ये बड़ा अच्छा मुझको लगा. इसका मतलब I will stop my lecture over here related to the first sentence and then we would be heading towards the second sentence. So remember, good के तुरंत बाद इसकी इंग्लिश होती है immediately after the word good you will have to apply at. रट लीजिए. और जहां पे द आ गया, in the field of mathematics, reason why? Because we use the preposition for showing depth of anything. किसी चीज के डेप्थ में जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं in. And I will only wait for 5 seconds. देखते हैं कौन डाउट रेस करता है. मैं जरा पहले का आंसर लिख दूं. लुक एट दिस. कम से कम नहीं तो 6-7 मिनट निकल गए केवल पहले क्वेश्चन को समझाने में. ओके. She shouted angrily at the disobedient boy. और good at यूज होता है. चलो, अब हमने ऐड कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2. I asked them to provide us. I am damn sure अगर ये विद, हाँ, अगर बाय चांस ये विद ना लिखा होता तो बच्चे लिख के आते, पक्का फॉर लिख के आते. आई एम वेरी वेरी श्योर. इसी वजह से आज मैंने पहली बार आंसर के साथ शीट को प्रेजेंट किया है. आई आस्क्ड देम टू प्रोवाइड अस फॉर अ गाइड. कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, फॉर. और अगर आप अभी मेरे से ये बोलेंगे, सर इन केस इफ यू क्वेश्चन मी दैट सर लाइक व्हाई नॉट फॉर, अब मैं ऐसे क्या बताऊं तुम लोगों को. रीजन व्हाई? बिकॉज गाइड विल बी योर म्यूचुअल सपोर्ट, देयरफॉर वी यूज विद. अब देखिए अदर यूजेस ऑफ विद. देखना, आई एग्री डैश यू. देखते रहना. ही किल्ड हिम डैश अ नाइफ. डू नॉट आर्ग्यू डैश मी. चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो. ये लीजिए. आई एम वेरी वेरी शॉक्ड. इवन आई एम शॉक्ड टू सी दिस. ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं आर्ग्यू करूं तो विद कैसे लग सकता है? विद तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन लगाना पड़ेगा. अब रूल सुनिए. डू नॉट आर्ग्यू विद मी. विद को तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं. देन हाउ कम यहां लगा हुआ है? देखते हैं बच्चे क्या बोलेंगे. एंड स्पीक इन इंग्लिश इन माय क्लास. डू नॉट आर्ग्यू डैश मी. कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट कि विद क्यों लगा?
Sir, because the conversation or the argument will be held between two people. ओके ओके, विद बिटवीन टू पीपल, तो बिटवीन लगाओ। देखा? Sir, it's related to one person. Related to one person. Look at this. Beta, there are more than one in this sentence. Do not argue. Number one, जो आर्ग्यू कर रहा होगा। नंबर टू, जो आर्ग्यू सह रहा होगा, द वन हु वुड बी टॉलरेटिंग। विद इसलिए लगा है, वी हैव अप्लाइड विद रीजन व्हाई टू पीपल आर टुगेदर। टुगेदर डजंट मीन दैट दे आर ब्रदर्स और सिस्टर्स। दिस इज द रीजन वी अप्लाई विद। आई एग्री विद यू, यहां पर भी एक से ज्यादा लोग। ही किल्ड हिम विद अ नाइफ, क्यों? बिकॉज यू होल्ड अ नाइफ। ये देखिए हाथ। Sir, he is taking the help of knife. ओके, राइट नाउ आई एम राइटिंग विद दिस पेन टैबलेट। ये देखिए जरा, तो मैंने इसको होल्ड करके रखा है, इट इज इन माई ग्रिप। इसका मतलब मेरे से चिपकी हुई चीज है ये। दिस इज द रीजन। ये देख लीजिए अब विद कहां कहां पे लगा। अब हम लोग इसको स्क्रीन को जरा साफ करते हैं। वेट, देन यू विल अंडरस्टैंड। सेंटेंस था क्या? द सेंटेंस वॉज, आई आस्क्ड देम टू प्रोवाइड, नो मैटर द सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल, we would be applying, I would rather say we would be applying only with. I asked them to provide us with a guide because this guide would be further supporting them all the way. ये लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। चलो, I will scroll it down. मैंने कई लोगों को देखा है बोलते हुए कट ऑफ द ट्रीज। ये देखिए क्या बोलते हैं वो। किसको लगता है ये सही है? चलिए बोलिए। कट ऑफ द ट्रीज। हाँ, नहीं बोलना है। ये बोलोगे क्या जब आप लोग लिखते ही यही थे। द ट्रीज ग्रीव एट अ डेंजरस स्लैंट एंड हैड टू बी कट ऑफ 110%। चलो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट आउट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट डाउन। इफ एनीवन कैन रिप्लाई टू दिस वेरी वेरी पोलाइटली। चलिए जरा बोलिए। यस, कट ऑफ, कट आउट एंड कट डाउन। चलो बोलो जरा, क्या लिखेंगे? नहीं पता। Sir, cut off means something हाँ, stop. टू स्टॉप, कट ऑफ, टू स्टॉप। अच्छा, वो तो बेटा कॉल ऑफ होता है। जैसे मान लो मैच में बारिश पड़ गई, इन केस इफ इट रेन्स, सो आई एम सो सॉरी टू से, वो कॉल ऑफ, दैट मीन्स इट हैज बीन अबैंडन्ड। ये लीजिए, कॉल ऑफ। अब आते हैं कट ऑफ पर। कोई नहीं बता पा रहा है। कट ऑफ हम करते हैं जब कोई चीज धड़ से हटा देते हैं। बस फॉर एग्जाम्पल, कट ऑफ हिज हेड। आई एम सो सॉरी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है इस पूरे विश्व में कि पेड़, हाँ, कि पेड़ को, ट्री जैसी चीज को एक बार में गिरा दे काट के। कोई ऐसा है क्लास में जो ट्री को एक बार में काट के? प्लीज No, आइए। sir. क्या अचित आप कर सकते हैं ये? No, sir. लेकिन अचित मुझे डर लग रहा है No, कर sir. लेंगे। Sir, Hardik. ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। सो आई एम सो सॉरी, कट ऑफ, वी कैन कट ऑफ। ये देखो, ये एक बार में कट जाएगा। क्या लिखा है? फिंगर और हेड। लेकिन जब कोई चीज, whenever we cut something and it falls down, we use cut down for trees, remember this. and cut down का एक और यूज होता है, cut down का मतलब होता है reduce. तो जब हम ट्री को काटते हैं, याद रखिएगा, we cut down trees, reason why, because we are not uprooting it.
अपरूट का मतलब होता है जड़ से हटा देना, और जड़ से हटाने के लिए तो आपको बुलडोजर से लेके बाकी चीजों को लाना पड़ेगा। दिस इज द रीजन वी यूज कट डाउन। सेकेंड यूज होता है कट डाउन का जब हम कोई चीज की क्वांटिटी कम करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कट डाउन ऑन शुगर इन ऑर्डर टू रिड्यूस फैट। मेरी बात समझ है? वैसे तो भर भर के खाया होगा, स्पेशली करणवीर ने, कल दिवाली थी। तो कट डाउन का मतलब होता है नो रिड्यूस। सर। ओके, नो, गुड। कट डाउन ऑन शुगर, ये इसका आंसर है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, माई डॉटर बिलीव्स इन फेरीज, दैट इज सो इजी। आई थिंक सो इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि बिलीव ऑन कब लगाया जाता है और बिलीव इन। आइए पिक्चर में चलिए जरा, शायद ही कोई अपना वीडियो चला पाए आज के दिन। आई नो दिस, वेरी नॉन सीरियस। चलो देखते हैं। एंड अचित इज सो सीरियस अबाउट स्टडीज, गुड। Sir, belief on means like if you have faith in something, you have trust in something. Absolutely correct. We believe on God, which is unstoppable and unbreakable and unshakable. Wow, that is excellent dialogue. We believe in God, we believe on God, वो दोनों लगता है। मेरी बात समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग कोई फर्म बिलीव करते हैं, whenever we have a very strong will and determination about something, समझ गए, then we use, अभी मैंने बोला ना डेप्थ के लिए in, बात समझ गए। और जब कभी हम लोग यूज करते हैं ऑन, ऐसा नहीं कहूंगा टेम्पररी है, we can use this, we believe in God, we believe on God. In God, that means if we talk about, तो ये जो इंसान है who is believing in God has, he is theist, he will continue believing in God till the end. हाँ, शायद ऑन वाले का थोड़ा दीन ईमान डगमगा सकता है, वो थोड़े समय के बाद इधर उधर चेंज हो सकता है। इन द सिमिलर मैनर माई डॉटर, इसका इंडिकेशन ये है शी इज स्मॉल, देयरफॉर शी बिलीव इन फेरीज। रीजन वाई? क्योंकि फेरीज होते नहीं हैं, बट डॉटर बिलीव कर रही है, इसका मतलब शी इज स्मॉल, उसका बहुत फर्म बिलीव है। छोटे बच्चे जैसे गोस्ट में, अगर यहां पर गोस्ट भी लिखा होता तो हम लोग गोस्ट के लिए भी इन लिखते। माई डॉटर बिलीव्स इन गोस्ट। रीजन वाई? उसका रीजन क्योंकि उस समय, जिस समय की एज है उस डॉटर की, शी इज कंप्लीटली लॉस्ट इन ऑल दिस। तो इसी वजह से हम लोग ने ऑन नहीं लिखा, और ऑन लिख के भी मत आइएगा। मैं आपको अभी बता दूं, मैं ऑन के भी सेंटेंसेस लिखा दे रहा हूं, डोंट वरी, क्योंकि ऑन आपका गलत हो जाएगा, लड़ते रह जाओगे कि मैम ये गलत क्यों हुआ। माई डॉटर बिलीव्स इन फेरीज, इन का यूज और ऑन का यूज मैं आपको अभी बता दूं। इन का यूज तब हम करते हैं व्हेन दैट स्टेज फॉर लाइफ टाइम। ऑन का यूज हम स्पेसिफिकली, ज्यादातर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन नहीं लग सकता, लेकिन गॉड जैसे शब्द के साथ हम लोग ज्यादा करते हैं। मेरी बात समझ गए? ये फेरीज जैसा वर्ड, ये गोस्ट जैसा वर्ड, ये कोई भी जिस तरीके से, हाँ, इनफॉर्मल में कह सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलीव इन लव मैरिजेस, डू यू बिलीव इन गोस्ट, डू यू बिलीव इन फेरीज, डू यू बिलीव इन वर्किंग अलोन। इस तरीके के वर्ड आपके इन के साथ आते हैं। चलो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। आइए जरा, दिस इज सो इजी, आई शुड हैव नॉट इवन रिटन और डिस्प्लेड दिस सेंटेंस। इसके अलावा और किसी ने कुछ सोचा ही नहीं होगा और सोच भी नहीं सकता। ही ड्रू अ ब्यूटिफुल डायग्राम ऑन द बोर्ड एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस। आजकल फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए क्वेश्चन आता है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए क्वेश्चन आता है दैट डू नॉट पोस्ट एनीथिंग, डू नॉट पोस्ट एनीथिंग डैश माई वॉल। ये जो वॉल होती है, ये घर की वॉल नहीं होती है मेरे बच्चों, ये सोशल मीडिया वाली वॉल होती है। जो भी आप पोस्ट करते हैं ये सोशल मीडिया वाली वॉल पे जाके पोस्ट होता है। तो हम लोग यूज करते हैं ऑन।
I have seen few students writing in my wall नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से बोला सर हम किसी की आईडी में एंटर करते हैं तब जाके हम लोग उसको पोस्ट करते हैं, तो इन क्यों नहीं? व्हाट अ मार्वेलस क्वेश्चन। तो इन इसलिए नहीं क्योंकि ऑन शोज परमानेंट पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेरेस, ऑन द रूफ, फ्लोर, ग्राउंड, स्टेज, चेयर, बेंच, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो ये भी खत्म हुआ, विल नॉट डिवोट मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगेंस्ट शी बैटल्ड हर वे डैश द क्राउड। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू पीपल, अगेंस्ट द क्राउड। अगर मैं ये चीज बोलूं शी बैटल्ड हर वे अगेंस्ट द क्राउड, रीजन वाई, क्योंकि वेनेवर वी यूज दिस वर्ब बैटल, अगर हम लोग बैटल करते हैं, देयर वाज अ बैटल फॉट अगेंस्ट डॉट 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 डॉट, तो वो बैटल दिखाता ही है, वो शो करता ही है समथिंग रिलेटेड टू अगेंस्ट।